Okay, so now I guess people are joining in और टाइम हो गया है तो हम क्लास को शुरू करते हैं. Before which I would like to tell small in brief about our course. So as you all know, NET JRF exam is one of the most important exam to be cleared if you want to be a professor. अगर आप प्रोफेसर या रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो नेट जेआरएफ एक ऐसा ब्लॉक या दायरा है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा. स्टेज, राइट? तो उसका पोर्शन देखा जाए तो वास्ट भी है और अगर समझा जाए तो बहुत शॉर्ट भी है. So we thought of comprising all of it and making it very easy, crisp and understandable content for you all. So आशा है कि आप सभी को जो भी पढ़ाया जाएगा समझ आए. जैसे कि हमारा आज फर्स्ट यूनिट में कहा भी गया है टीचिंग एप्टीट्यूड. So it's like my testing stage कि how am I able to fulfill all your goals in terms of studying net paper, right? तो अगर कोई भी डाउट्स है तो बिना हिचक के आप मुझे पूछ सकते हो उस टाइम पे या फिर उसके बाद भी पूछ लो, कोई इशू नहीं. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आप उस दौरान पूछे तो कभी कभार टाइम गैप थोड़ा बढ़ सकता है ना. सो यू कैन if it's urgent you can always ask the question there and then and otherwise you can message me. ठीक है? तो before which I would like to introduce myself. So I am Neha Pradeep Sangodkar, BTech computer engineer from Goa College of Engineering. I stay at Goa also and I've completed my MSc from University of Patanjali, currently pursuing PhD in the same university. So JRF rank holder and yes, so before which yes, so this is my like credibility certificate wherein जैसे कि I aimed and I got it, so 99.74 percentile. और मुझे पूरा भरोसा है मेरे कंटेंट पे कि आप अगर पढ़ोगे उसको समझोगे चीजें तो आपको भी उतने स्कोर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो मेरा पेपर 2 योगा था and I tried to get almost same level of score in the case of paper 1 as well as paper 2, right? So 99.6, 99.6, almost similar types. So that's all about this. And what we offer at Agni Mandiram, to tell you in brief, so we have live classes by our educators to have you sound knowledge about the matter concerned, and it involves paper 1 as well as paper 2. तो दूसरी बात कि यहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल भी दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जानते हो ये एमसीक्यू टेस्ट है ना. तो आपको डेली आफ्टर क्लास टेस्ट भेजा जाएगा जो आपको सॉल्व करना है एंड अकॉर्डिंगली फिर मुझे पता चलेगा कि आपका असेसमेंट कितना है, आपने कितना समझा चीजों को, है ना. सो दिस इज सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट. एंड thirdly, yes, content material, and fourth is online discussion platform for clearing all your doubts, right? So this would be conducted on the weekly basis, as in every Sunday. If you have any doubt you can tell it to me in brief on Saturday, so we can conduct it on Sunday. Otherwise we can have it off on the Sundays, right? Secondly, okay, तो लैंग्वेज ये है कि मेनली बिकॉज पेपर 1 मैं मानती हूँ कि कंटेंट इंग्लिश में रखा जाए तो बेटर है, पर हाँ आपको एक्सप्लेन करते वक्त तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करूँगी. एंड सेकेंडली ये आपका कंटेंट ओरिएंटेड स्टडी है तो ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो लेट्स हेड ऑन टू द class of first lecture, that is teaching aptitude. So teaching aptitude, so this is one topic which we all have to be very much understanding sort of, because आपको finally teacher बनना है, you have to be like a professor, right? You have to be a professor. So जैसे it's very important that you have the aptitude for the teaching. So what is this teaching? So in the content, in the syllabus, the important topics which have been found are nature, objectives, characteristics, basic requirement for teaching, then factors which affect teaching, then methods, characteristics of the learners, evaluation of teaching system, and then evolution of it, growth,
how it has changed from the traditional system to the more modernized system, and then teaching aids, of course. So yes, if you plan to, if you plan for a 1 year, you plant rice. If you plan for 10 years, you plant a tree. And if you want to plan for eternity, educate others, right? And this is a very noble job. Teaching is a very noble job. ये बहुत अच्छा माध्यम है इन्फ्लुएंस करने का, किसी को एजुकेट करने का, right? So what is this teaching? So teaching is a process in which learner, teacher, and the other extra variable, that is what we call as intervening variable, so they are all organized in a systematic way to attain some predetermined goal. कोई भी एक पहले से ही सोचा गया हुआ गोल को साध्य करने के लिए टीचर, लर्नर और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है उनका कॉम्बिनेशन प्रोसेस teaching कहलाता है. So it's not like only the teacher what teaches, but the environment also is influencing the learner, right? Secondly, what is aptitude? Aptitude क्या है? It's the natural ability, your natural ability to do something, your innate instinct, your innate ability. तो जैसे कि कुछ लोगों में जन्मजात या फिर यूं कहें तो बचपन से टीचिंग थोड़ा सा किसी को प्रीच करने की आदत होती है या फिर किसी को हेल्प ज्ञान के माध्यम से देने की आदत होती है, एंड देन दे ग्रो अप टू बिकम अ टीचर लेटर, राइट? सो दिस टीचिंग एप्टीट्यूड इज एक्चुअली अ नेचुरल एबिलिटी टू टीच, which can also be influenced, which can also be improved via learning. So usually हम जब किसी को पढ़ाते हैं तो क्या improve होता है? उसके improve होते हैं skills. Skills of the learner are getting improved during teaching process. और skills कौन से होते हैं? We'll learn all this thing in the step by step process. Okay? तो ये जो भी कंटेंट बनाया है ना, considering all the questions which have come before and which have proximity of coming in the coming future exams, उसके बेसिस पे बनाया है. तो जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि what is the most desirable skill of the teacher? What is the most desirable skill? आप सभी जानते हैं टीचर का मेन उद्देश्य क्या होता है? स्टूडेंट को समझाना. जैसे अब मेरा उद्देश्य आप सभी को समझाना, और मुझे तभी पता चलेगा कि मैं खरी उतर पा रही हूँ या नहीं जब आपका स्कोर आएगा. सो आशा तो पूरी है कि आप सभी का JRF हो, और हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी करेंगे आपकी और पूरी मेहनत भी करेंगे. सो लेट्स गेट स्ट्रॉन्गर टुगेदर देन. Alright. Then next. So objective of teaching. अब teaching का उद्देश्य क्या है? Mainly to acquire knowledge, to develop the understanding. Secondly, to develop conceptual, intellectual skills of the person or the student or the learner, right? Development of values system. तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे टीचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट के लिए, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. इसलिए तो मेनली मैंने ये कहा कि ये स्लाइड पहले कंटेंट्स को ही ब्रीफ दे रही है कि हाउ टीचिंग कैन इन्फ्लुएंस योर स्किल्स, योर बिहेवियर, योर नॉलेज, राइट? तो ये मेन उद्देश्य होते हैं. अब पढ़ते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो मेनली हमारी जो टीचिंग है ये कला और विज्ञान का समन्वय है. इट्स एन आर्ट एज वेल एज साइंस. इट्स अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस. क्यों? बिकॉज when you're a teacher is influencing who? Student. So you are communicating and there's a to and fro communication, even the peer to peer communication जो होता है. तो यहाँ पे एक कोई भी आइसोलेशन में नहीं हो रहा है. इट्स अ सोशल प्रोसेस, राइट? सेकेंड, थर्डली, टीचिंग इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन. व्हाई? क्योंकि एक सक्सेसफुल टीचर तभी कहलाया जाता है जब उसके स्टूडेंट के साथ समझाने का तरीका सटीक हो, प्रिसाइज हो और अंडरस्टैंडेबल हो, राइट? सो इट इज द स्किल ऑफ द टीचर टू मेक यू इंटरेस्टेड थ्रू आउट. ये मेरी काबिलियत पे डिपेंड करेगा कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड भी तो होता है, बट कंसिडरिंग मोर ओवर एक टीचर का दायित्व होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करना. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे. जैसे व्हेन अ पर्सन लिसन्स एंड अटेम्प्ट्स टू, वन सेकेंड ना, क्वेश्चन में यहाँ पे, यस, जस्ट अ सेकेंड, यस.
So when a person listens and attempts to understand the other's opinion, other's viewpoint, what is it called? एम्पैथी. एम्पैथी ये एक क्वालिटी है टीचर की जिसके कारण एक टीचर स्टूडेंट के जगह पे जाके समझने लगता है कि अच्छा व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ग्रास्पिंग पावर. क्यों बच्चा अटेंड नहीं कर रहा क्लासेस, क्यों बच्चा समझ नहीं पा रहा जो पढ़ाया जा रहा है. तो एम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक अच्छे टीचर का. Right, so empathetic listening is the quality which has to be adopted by every teacher. Empathy is different from sympathy. Sympathy में क्या होता है, आप pity feel करते हो उसके बारे में, you feel sorry for the person. पर यहाँ पे आप उसकी जगह पे जाके देख रहे हो. So this is one attribute of the teacher. Secondly, यहाँ पे टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव रहना चाहिए, तभी एक अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हो सकता है. Right, and secondly, yes, teachers should have analytical skills, ability to break down the parts. जैसे कि अभी नेट जेआरएफ का पेपर देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत है, पर ये एक काबिलियत होगी टीचर की उसको डिवाइड करना और समझाना पार्ट बाय पार्ट एंड इन अंडरस्टैंडेबल मैनर. राइट, बिकॉज स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने के. जैसे कि यहाँ पे एक कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बताया जा रहा है जिसमें आपको कहा है कि teaching is mainly two types, formal teaching and informal. Formal teaching is mainly carried out by the professional teachers, professional faculty which are there to knowledge, to impart the knowledge to you. And secondly, informal teaching में क्या होता है कि यहाँ पे आपके सारे family members, your society, your community is going to influence you in your mainly initial years or your final years too sometimes. राइट, तो इनफॉर्मल फॉर्मल दो टाइप्स की टीचिंग होती है. तो मेनली पर यहाँ हम फॉर्मल टीचिंग पे बात कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मल टीचिंग में सारे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स एंड द स्कूल इंस्टीट्यूशन इज कमिंग इनटू प्लेस. तो फैक्टर्स कौन से होते हैं टीचिंग को इन्फ्लुएंस करने के, देख लेते हैं. सबसे पहली बात, तीन वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ मैसेज. ओके, तो तीन वेरिएबल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो स्टूडेंट, दूसरा टीचर और तीसरा फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जिसको कहते हैं, वो देखेंगे हम आगे. सेकेंडली, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रेपो बनाने में स्टूडेंट का टीचर के साथ और टीचर का स्टूडेंट के साथ, तभी तो एक्चुअल वो फ्लो होएगा. राइट, और मैं आपके साथ रेपो तब बना पाऊंगी जब मेरी नॉलेज आपके तक पहुंचेगी, मेरी नॉलेज आपको प्रिसाइज लगेगी, टू द पॉइंट लगेगी. राइट, बिकॉज यू ऑल आर ऑलमोस्ट at higher level students, right, which are aiming for PhD. आप सभी टीचर्स बनना चाहते हो, so it's very important कि आप सारे ये soft skills भी जान ले regarding student teacher relationship. Thirdly, methods of teaching used. It is very important that you should know how to delegate a class, how to teach. So there are different styles of teaching, that also matters. तो ये भी देखेंगे. और चौथी बात है टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप. स्टूडेंट टीचर का इंस्टीट्यूशन के साथ कैसा है, ये सारी चीजें. फिर सोशल एनवायरनमेंट उसका सामाजिक एनवायरनमेंट कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है उसका, ये भी मैटर करता है. छठा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी स्टूडेंट का भरोसा होगा अपने टीचर पे कि हाँ, दिस टीचर इज गिविंग मी द राइट नॉलेज, the teacher is giving me the proper knowledge. तो सब्जेक्ट मैटर को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. राइट, तो सेवेंथ पार्ट, स्किल्स ऑफ अ टीचर. यस, सो टीचर तो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, उसके पास स्किल्स एज अ डिसिप्लिनरियन भी होनी चाहिए एंड ही शुड बी अ फ्लेक्सिबल इनफ टू गेट एडजस्टेड विद द स्टूडेंट. राइट, बिकॉज स्टूडेंट को जरूरत होती है to get understood by the teacher. Right, तो teaching is based upon, यहाँ पे question भी आया है कि teaching is based upon what? Mastery of what? Knowledge of the concepts, teaching skills, decision making power और all of the above. So यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टीचर को मल्टी डायमेंशनल सब कुछ पता होना चाहिए एक तरह से. So you have to be an all rounder, क्योंकि तभी आप अपने बच्चे को ऑलराउंडर बना पाओगे, तभी आप अपने स्टूडेंट को ऑलराउंडर बना पाओगे. राइट, तो दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग. तो टीचिंग के फैक्टर्स में
एक्सपीरियंस भी काम आता है, जैसे कि एक एक्सपीरियंस्ड टीचर, जैसे अभी हमने 2 बैचेस कराए थे ऑलरेडी, तो हमें पता चल गया कि बच्चे को क्या जरूरत होती है उस टाइम पे क्लासेस में। ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करती है जब भी आप क्लास किसी को लेते हो या फिर देते हो, जो भी। एंड देन क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट भी मायने रखता है, बिकॉज एक क्लासरूम इन्फ्लुएंस करता है टीचर का कैसा होगा बर्ताव आगे स्टूडेंट के साथ। समझे कितना? Then economic factor is also important, because finally a teacher has to earn, right? आज के ज़माने में टीचर भी ज़रूरी, he is also leaving, right? So economic factor is also important. Administrative policies of the school, yes, this is also important factor, क्योंकि आजकल जैसे ओपन स्कूलिंग भी, ओपन स्कूल एंड क्लोज स्कूल, ये फैक्टर आपने सुना होगा। एंड इवन कभी कभार कुछ पॉलिसीज कॉलेजेस की बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका टीचिंग डेकोरम बहुत अलग होता है, so ये भी फैक्टर मैटर करता है। थर्डली सब्जेक्ट मैटर, कितना आप क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या स्टूडेंट की वो लर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, क्या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, ये भी फैक्टर मायने करता है। एंड देन पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, यस, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे को कला विज्ञान, कला क्षेत्र में जाना है और parents are forcing you to go into the science stream, but who knows, the student can excel in the arts stream too. So बहुत दायरे हैं, humanities and all, right? So यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, जैसे कि who, और ये आया भी है क्वेश्चन, like who has the जी पीछे से बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है क्या? किसी का all right okay दीदी। हाँ जी जी दीदी जी वो मेरे को ना 11th पॉइंट फिर से समझा दीजिए। ओके ठीक। तो मैं कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कभी कभार जो पॉलिसीज, जैसे हर यूनिवर्सिटी के मेन बॉडी तो यूजीसी होती है, पर उसके अंडर भी जो कॉलेज होते हैं, हर एक में पॉलिसीज अलग अलग हो सकती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में आपका जो टीचर के ऊपर जो है, प्रोफेसर्स या फिर जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, तो वो किस तरह से टीचर के साथ इन्फ्लुएंस बता रहे हैं कि हाउ दे हैव टू डेलीगेट क्लास एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है टीचिंग में, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी लेवल का फैक्टर बता रहे हैं, राइट? सो बिकॉज यू ऑल नो यूनिवर्सिटी ऑल्सो मैटर्स, आप जानते होंगे हाउ यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट व्हाइल गोइंग टू एनी स्ट्रीम, राइट? So this is one factor. Yes, and then और फिर और एक क्वेश्चन आया है कि जैसे प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम गुड टीचर क्या है? जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नॉलेज की गुड एक्सप्रेशन। देखा जाए तो सारे लगते हैं, पर आपको एक चूज करना होता है एमसीक्यू में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टीचर का? सब्जेक्ट नॉलेज, तभी तो स्टूडेंट आएगा। अगर टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो फिर स्टूडेंट क्यों आएगा उसके पास? क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स आर themselves smarter than sometimes teachers as well, right? But the teacher has to make sure that he is at par with the new knowledge. टीचर को ये जरूरी है कि वो आजकल के नए जमाने के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, नए इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाते आगे बढ़े, राइट? तो इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इज काउंटर एक्टेड बाय द मॉडर्नाइज्ड एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम ऑनलाइन लर्निंग और फिर मूक, एमओसी, वो सारे देखेंगे, तो ये सारी चीजें आते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स या 3 वेरिएबल्स होते हैं, वो 3 वेरिएबल्स क्या है ये देख लेते हैं। तो मेनली टीचिंग में 3 मेजर वेरिएबल्स काम आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब ये 3 क्या है ये देख लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि आप जानते हो, ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड करता हो इंडिपेंडेंट से, तो यहाँ पे डिपेंडेंट कौन हो गया? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड करता है और टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली। तो यहाँ पे टीचर को छूट है कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ले जाए, क्योंकि एक तरह से वो सारथी हो गया है, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर। एंड थर्डली इंटरवेनिंग वेरिएबल,
इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या आएंगे, सारे फैक्टर्स जो कि उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उन दोनों के रिलेशन को कंट्रोल करेंगे, टैकल करेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आप क्या आंसर करोगे, टीचर, राइट। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था इंटरवेनिंग वेरिएबल, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल में टीचिंग मेथड, curriculum, society, teaching learning activities and parents are influencing the teaching learning, teaching or teacher and student, right। क्योंकि ये दोनों के, क्योंकि जैसा आपका बैकग्राउंड होगा, जैसा आपका बाकी फैक्टर्स काम करेंगे, उसी प्रकार का रिलेशन, उसी प्रकार स्टूडेंट भी टीचर के साथ अच्छे से ग्रास्प कर सकेगा। बिकॉज आप जानते होंगे क्योंकि एक स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका पेरेंटल सपोर्ट, उसका सोसाइटी, उसका करिकुलम, ये सारे दायरे होते हैं उसको, स्टूडेंट को एक नॉलेज गेनिंग बनाना, या फिर कभी कभार जैसे आप जानते हो भरकटते हैं, या फिर जैसे यूं कहें कि उस टाइम पे ग्रास्पिंग पावर या फिर लर्निंग प्रोसेस इतने अच्छे से नहीं हो पाती अगर बाकी फैक्टर्स इतने सपोर्टिव ना हो तो, राइट। तो ये भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो यहाँ पे मेनली जब टीचिंग मेथड्स की बात करें तो 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं। मतलब आप अगर क्लब करना सोचेंगे तो 3 मेजरली, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक और सब्जेक्ट सेंट्रिक। तो ये 3 चीजें क्या है देख लेते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होगा, जैसे कि नाम बताया है कि यहाँ पे केंद्र स्टूडेंट की तरफ होगा, स्टूडेंट केंद्रित, टीचर केंद्रित एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट केंद्रित मेनली। तो जैसे कि यहाँ पे आजकल आप सभी जानते हो कि टीचिंग स्टूडेंट ओरिएंटेड हो रही है। व्हाई सो? बिकॉज नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज स्टूडेंट आर गेटिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न व्हाट दे वांट टू लर्न। जैसे कि आप सभी जानते हो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं प्रभा, ये सारी इनिशिएटिव्स हैं स्टूडेंट को केंद्रित रखते हुए कि बच्चा क्या चीजें जानना चाहे वही वो समझे या वही वो जाने, राइट। जैसे कि अभी बहुत सारे एजुकेशनल पॉलिसी में भी बदलाव लाए गए हैं, वो सारे हम हायर एजुकेशन फैक्टर में पढ़ेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब का पेपर शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, मतलब करंट ओरिएंटेड कंटेंट भी हमें स्टडी करना चाहिए, राइट, टू बी एट पार, राइट। तो मेनली टीचिंग के 3 लेवल्स हैं। तो ये जो अभी मैंने कहा था ना, स्टूडेंट, टीचर ओरिएंटेड एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इनमें मेनली ये 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो ये क्या है देख लेते हैं। तो मेमोरी लेवल टीचिंग में मेनली आपकी जो इनिशियल स्टेज की टीचिंग कहलाती है, जहाँ पे यू डू द रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब मगअप करना, जैसे आप बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए बस उसको रटे जा रहे हो। सो दिस इज दैट मेमोरी लेवल टीचिंग। नाउ ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से उसको रट पा रहे हो, है ना। तो ये मेमोरी लर्निंग टीचिंग, ऐसा नहीं है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज जबकि दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग और फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग। जैसे आप सभी जानते हो ABCD, ये हम कैसे सीखे थे, 1 2 3 4 कैसे सीखे थे, मेमोरी लेवल टीचिंग से ही तो सीखे थे। इवन द टेबल्स का हमने कोई मीनिंग नहीं लगाया था, टेबल्स को हमने रट लिया था। अब भी हमें वो सारी चीजें याद है, बे के बे, बेदन चार, बेत्रिक सहा। सो वी ऑल नो दिस बाय द मेमोरी लेवल, क्योंकि आप सभी जानते हो छोटे जब हम होते हैं उस टाइम पे हमारी मेमोरी पावर बहुत ही बड़ी होती है। बाद में तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड देन रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब किस प्रकार हम समझ पा रहे हैं उस बेसिस पे हम चीजों को याद रखते हैं, समझ लेते हैं, राइट। तो ये हर्बर्ट वाज द प्रोपोनेंट, मतलब प्रचारक थे उसके, उस लेवल के टीचिंग के लिए, right? So this is one memory level, this is one teaching which is the base for the next upcoming teaching method. तो यही बताया यहाँ पे, जैसे अभी जो मैंने बोला यहाँ पे क्रैमिंग, रोट लर्निंग, नॉलेज कुछ हम गेन नहीं करते, मतलब ऐसे हम कुछ अपना सोच नहीं लगा रहे हैं, बस हम उसको रटे जा रहे हैं, राइट। तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर रहे हैं। एंड देन आगे, सो यहाँ पे ये टीचर केंद्रित है।
क्यों टीचर केंद्रित? बिकॉज टीचर के पास वो पूरा अधिकार है बच्चे को क्या पढ़ाना है. स्टूडेंट कुछ नहीं कह सकता. ही हैज टू जस्ट शट हिज माउथ. ही हैज टू जस्ट, मतलब वन वे ट्रैफिक हो रहा है. स्टूडेंट समझ रहा है, ग्रास्प कर रहा है, एंड टीचर इज गिविंग इट. सो यहाँ पे टीचर इज प्राइमरी एंड एक्टिव, ओके, एंड स्टूडेंट इज सेकेंडरी एंड पैसिव. पैसिव कहते हैं. तो मेमोरी लेवल टीचिंग में हम हमारी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं. इट डज नॉट इम्प्रूव आवर इंटेलिजेंस, इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, बट इट इज रिक्वायर्ड दैट फॉर कि हम बाकी लेवल की टीचिंग को भी ध्यान में रखें. और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो टीचिंग लेवल मेथड है ना, ये बाकियों का फाउंडेशन हो जाता है. मतलब ऐसा हम उसको स्किप नहीं कर सकते. सो इतना याद रखना कि इट्स लाइक द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग. सेकेंडली आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अब यहाँ पे जैसे आप जो भी पढ़े, जो भी आपने सीखा, राइट, यू आर मगिंग, जो आपने मगअप किया, जैसे कि टेबल्स, तो उसको हम अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूलेज में, अपने इक्वेशंस में, अलजेब्रा मेथड्स में वगैरह. तो यहाँ पे दिस मॉरिसन इज द प्रोपोनेंट. मॉरिसन इसके प्रचारक रहे हैं. एंड मेमोरी लेवल टीचिंग फर्स्ट प्री रेक्विजिट है, बहुत जरूरी है. और तीसरी बात कि यहाँ पे ये फोकस होता है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. आप चीजों को समझ रहे हो जो भी आपने पढ़ा था. जैसे कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब या तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको रट लो या अंडरस्टैंड करो. जैसे कि कभी कभार आपने सुना भी होगा, स्टोरी के फॉर्मेट में जब हम चीजों को समझते हैं तो ज्यादा याद रख पाते हैं, क्योंकि हम लेवल भी, तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कभी कभार ये कहते हैं ना कि मेमोरी थोड़ी सी वीक हो जाती है. तो मेमोरी लेवल टीचिंग